گزارش ہے کہ جو ہی قومی علم سٹیج پر نمودار ہو تو احتراماً کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات مارچ کرتے ہوئے اپنی مخصوص جگہ لے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو ہی قومی علم سٹیج پر نمودار ہو تو احتراماً کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں۔
خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج کی اس تقریب میں جو سلامی گارڈ ہے، اس کی خاصیت سول آرمڈ فورسز کی مسلح فوج کے ساتھ شمولیت ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کے سامنے بائیں سے دائیں سب سے پہلے پاکستان رینجرز پنجاب اور سندھ کا دستہ، ان کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کے شاہین، اور اس کے بعد موجود ہے پاکستان آرمی کا چاق و چوبند دستہ۔ مرکز میں ہمارے علم بردار موجود ہیں۔ دائیں جانب پاکستان نیوی کے جوان، فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اور سب سے دائیں جانب چاروں صوبوں کی پولیس بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دستے بھی اس سلامی گارڈ میں پہلی مرتبہ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ باوقار دستے خواتین و حضرات پاکستانی قوم کی یگانگت اور اتحاد کی عکاس ہیں۔ ان کی منظم مارچ قومی جذبے سے سرشار لگن در حقیقت قائد کے عطا کیے گئے رہنما اصول ایمان، اتحاد اور تنظیم کو زندہ و جاوید کیے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی چمک پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے۔ علم اٹھائے یہ جوان جانتے ہیں کہ یہ پرچم ہماری خود مختاری کا سب سے بلند نشان اور قربانیوں کا استعارہ ہے۔ یہ پرچم ہر شہید کے خوابوں، ہر جوان کے عہد وفا اور ہر غازی کے جذبے۔ ہمارا سبز ہلالی پرچم جو تصویر ہے ہمارے اجداد کی قربانیوں کی، جو تعبیر ہے اپنی وحدت، اپنی عزم و کردار اور حوصلے کی داستانوں کی، یہ وہ اجالا ہے جو خون شہداء کی گواہی ہے، یہ وہ خواب ہے جو تاریخ کے ہر صفحے پر اپنے عزم کی تحریر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم سب منتظر ہیں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر پاکستان عزت مآب جناب آصف علی زرداری کی آمد کے۔ ان کی آمد کا اعلان ٹرمپیٹرز بگل بجا کر کریں گے۔
خواتین و حضرات، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ چیف آف ڈیفنس فورسز، دیگر وزرائے کرام اور سروسز چیف کے ہمراہ ان کا استقبال کر رہے ہیں اور وہ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، دنیا گواہ ہے کہ پاکستان کی قومی قیادت نے مارکائے حق میں حب الوطنی کا حق ادا کر دیا۔ مارکائے حق کی یادگار کے افتتاح کے موقع پر فاتحین مارکائے حق تشریف لا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، پریڈ مہمان خصوصی کو صدر سلام پیش کرے گی اور قومی ترانہ جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ احتراماً کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں۔
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जश्न आज़ादी पाकिस्तान और यादगार फ़तह के इफ्तिताह की तक़रीब का बाकायदा आगाज़ कलाम इलाही से तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं क़ारी सैयद सदाकत अली हिलाल इम्तियाज़। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लका صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العلي العظيم ارشاد خداوندی ہے ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف، تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تمہیں سیدھے رستے چلائے، اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज जश्न आज़ादी और यादगार फ़तह की इस शानदार इफ्तिताही तकरीब में फ़रासादिया और तौसीक हैदर आपको खुशामदीद कहते हैं।
आज हमारी खुशी दुभाला है। आज हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं और यादगार फतह की इस इफ्तिताह की शानदार इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक हैं। यकीनन आज का दिन अल्लाह ताला के हजूर शुक्रगुजार और तजदीद अहद का दिन है। बेशक ख़वातीन हज़रात, हमारी आज़ादी क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक दी गई कुर्बानियों के तुफैल है। और हमारे बैकड्रॉप पे आप ये जो खूबसूरत यादगार फतह देख रहे हैं, ये मारकाए हक की कामयाबी की कहानी आने वाली नस्लों को सुनाती रहेगी। जो जो भी यहाँ आएगा, आने वाले हजारों लाखों साल अल्लाह ताला ता क़यामत पाकिस्तान को आबाद और शाद रखे। तमाम नस्लें इस कहानी को, इस यादगार फतह को देखकर दोहराएंगी। और ये कैसी कहानी है फरा कि जिसमें पाक अफवाज के साथ आम अवाम शाना बशाना गैर मुतजलजल अज़्म और हौसले के साथ एक जान होकर खड़ी रही। बिलाशुबा, क्योंकि मार्काए हक पाकिस्तानी कौम की गैरत ईमानी और कौमी इत्तेहाद का नतीजा है। और फिर दुनिया ने देखा कि हर कदम पर फतह मुबीन इस गयूर कौम का मुकद्दर बनती चली गई। कठिन वक्त में पाकिस्तानी कौम का हर फर्द अपने अपने महाज पर बुनियानुम मरसूस एक सीसा पिलाई दीवार बन गया। आप सबको याद होगा, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पाकिस्तान को जंग में धकेलना चाहा, मगर जहां एक तरफ पाकिस्तान की क़यादत ने सिफारती महाज पर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को बेनकाब किया, तो हमने देखा कि वहां दूसरी तरफ मैदान जंग में हमारी बर्री, बहरी और पाक फ़ज़ाइया की बहादुर अफवाज ने अपनी पेशावराना, मौसर और मरबूत जंगी हिकमत अमली से महज चंद फैसला कुन ज़रबों से ही दुश्मन की अस्करी नाकामी को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। ख़वातीनो हज़रात, यादगार फतह कलमाए हक की ललकार बनकर हमेशा हमारे लहू को गरमाती रहेगी कि ये पाकिस्तानी कौम के ईमान और इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान के अज़्म और कौमी हमीयत व शुजाअत का निशान यादगार फतह दरअसल यादगार इश्क़ वतन है। जी हाँ, बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, आपको हम बताते चलें कि जब इस यादगार को प्लान किया गया तो माहिरीन ने कहा, बैनुल अक़वामी सतह पे और कौमी सतह पे भी आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन के माहिरीन ने कि कम से कम 3 से 4 साल का प्रोजेक्ट है। लेकिन टीम ने आज एक ख्वाब को ताबीर में बदला। सिर्फ 7 से 8 माह के अंदर ये यादगार और ये पूरा वेन्यू आपके लिए तैयार हुआ। और मेरा ख्याल है हमें जोरदार तालियां बजा के पूरे उन मेहनत कशों को, आर्किटेक्ट्स को दाद देनी चाहिए। हमने ये किया कि इस पूरी कहानी को खाकों से, आर्किटेक्चर के जो डिजाइन होता है वहां से लेकर इस सूरत तक एक वीडियो की सूरत में एक कहानी आपके लिए तैयार की है, जिसकी तरफ अब हम बढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन ये सिर्फ तामीरी मराहिल की कहानी नहीं है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, मार्काए हक पाकिस्तानी कौम की जीत है। पूरी कौम एक सीसा पिलाई दीवार बनी और हज़रात यादगार एक सीसा पिलाई दीवार की अलामत के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। इसमें अब हम बात कर रहे हैं उस फनी महारत की जिसकी तरफ तौसीक ने इशारा किया है। सिर्फ वीडियो में तामीरी मराहिल नहीं, बल्कि हम उस अज़्म, जाफशानी और मेहनत की झलक भी देखेंगे जो सिर्फ इस यादगार की सूरत में ही नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम की सूरत में भी महफूज हो गई है। तो आइए नाजरीन और हाजरीन मुलाहिजा करते हैं यादगार फतह के तामीर की कहानी। वक्त हर लम्हे को अपने साथ बहा ले जाता है, लेकिन कुछ लम्हे Now you just wait for our response. मार्काए हक भी ऐसा ही एक लम्हा था, जिसकी बाज़गश्त की कैद से आजाद होकर एक दायमी हवाला बन गई। ऐसे अजीम लम्हे सिर्फ याददाश्त में महफूज नहीं रखे जाते, बल्कि उनके शायान शान तारीख में एक अब्दी मुकाम तख्लीक किया जाता है। इसी कौमी अज़्म को एक मुजस्सम सूरत देने के लिए मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत अफरोज रहनुमाई से एक याद का फैसला किया गया। इसके हर पहलू को बारीक बीनी
गहरे गौर व फिक्र और जामे मंसूबा बंदी के मराहिल से गुजरा। ऐसी कौमी मीरास तख्लीक की जा सके जो मार्काए हक की रूह, कुर्बानियों और तारीख फतह को हमेशा जिंदा रखे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के क़ल्ब में मरकजी शाहराह से मुत्तसिल 12 एकड़ रकबे पर इस मुकाम का इंतखाब किया गया। ये यादगार अपने हर पहलू में कौमी इत्तेहाद, अजमत और वकार की अक्कास है। ये महज संगो यादगार बुनियाद और मस्जिद नबवी से माखूज इसकी 5 हमारे अकीदे, रियासत और दिफाए वतन के इन अब्दी नक्शो निगार, हर तफसील, हर तनासुब इस बारीक बीनी से तरतीब दिया गया है कि पूरी यादगार एक ही दास्तान का तसलसल महसूस हो। मुल्की के फैसला किया कि मार्का हक के इस गैर मामूली बाब को 79 में जश्न आजादी के मौके पर एक अजीम शान यादगार की सूरत में कौम को बतौर तोहफा पेश किया जाए। इस कौमी अज़्म को एक पायदार हकीकत में ढालने के लिए FWO ने महज 8 माह की कलील मुद्दत में दिन रात की अनथक मेहनत से इस गैर मामूली इंजीनियरिंग मंसूबे को पायाए तकमील तक पहुंचाया। यादगार फतह की तामीर में वही सफेद संगे मरमर इस्तेमाल हुआ है जो मुताफे काबा में मुज़य्यन है। यादगार फतह का औजे कमाल इसकी पेशानी पर आरास्ता 14 फुट बुलंद संगे मरमर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तमाम नाकाबले फरामोश लम्हात को सब्त किए हुए है। यादगार में इस्तेमाल होने वाले इंतहाई सख्त संगे मरमर पर 10 इंच गहरी कंदाकारी की गई। इस दकीक काम के लिए माहिर नक्काश और संग तराश मखसूस आलात के साथ हजारों घंटे मसरूफ अमल रहे। संगे मरमर के इन 700 किलोग्राम भारी हिस्सों को इस ऊंचाई पर लगाना हमारे लिए एक गैर मामूली चैलेंज था, जिसे हमने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के मुताबिक एंकर बोल्ट्स और स्टील फ्रेम के साथ नस्ब किया। हमारी मेहनत आज इस यादगार की सूरत में खड़ी है। ये हमारे लिए सिर्फ एक काम नहीं, ये एक एजाज है। यादगार फतह का हर गोशा एक सोच का मजहर है। पुरवकार तकरीब गाह, वसी अवामी मकामात, मल्टीपर्पज हॉल्स, इस्लामाबाद और मार्गला पर चौतरफा निगाह डालता व्यूइंग डेक, खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स और 222 फुट बुलंद परचम सब मिलकर एक मशहूर कुन फिजा तश्कील देते हैं। जबकि जदीद लिफ्ट्स और रैंप्स के जरिए यादगार के हर हिस्से तक रसाई को सबके लिए आसान बनाया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुस्तकिल आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शन मैपिंग सिस्टम यादगार फतह को एक जिंदा शाहकार में ढाल देता है। रोशनी, आवाज और मंजर कशी का ये इम्तिजाज हर आने वाले कल को माजी की अजमत से रूशनास कराता रहेगा। यादगार फतह का असल विरसा इसके तूलो अर्ज में नहीं, बल्कि उन कौमी शार और अक़दार में है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहेंगी। यही वो जज्बा था जिसने इंजीनियर, आर्किटेक्ट, हुनरमंद, मजदूर और हर कारकुन को एक ही मकसद के लिए यकजा कर दिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ख़वातीन और हज़रात, यादगार फतह बिलाशुबा हमारी नई नस्ल को हमेशा ये पैगाम देती रहेगी कि आज़ादी नेमत भी है और अमानत भी, और इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सही करना हमारा फ़र्ज़ भी है और हम पर क़र्ज़ भी।
خواتین و حضرات، اب وہ لمحہ آن پہنچا ہے جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم دعوت دینا چاہیں گے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب آصف علی زرداری کو، اور ان کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان عزت مآب جناب محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ چیف آف ڈیفنس فورسز کو کہ تشریف لائیں اور یادگار فتح کا باقاعدہ افتتاح فرمائیں۔ خواتین و حضرات، صدر مملکت جناب آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ چیف آف ڈیفنس فورسز، یادگار فتح مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری اب اسکرین پر اپنا ہاتھ رکھ کر افتتاح فرما رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی اور کمال فن تعمیر کا شاہکار یادگار فتح اس کا افتتاح ہو چکا ہے، جو آنے والی نسلوں تک معرکہ حق کی داستان اور کہانی سناتا رہے گا۔